everyone, welcome to the social science class of grade 6. In this video we are going to discuss the short answer and the long answer type question answer of our third chapter of geography, that is planetary motion. In the last video we have discussed the back exercise and the very short answer type question answer. In this video we are going to discuss the short answer and the long answer type question answer. Let us start today's work. Short answer type questions. First is explain the circle of illumination and its effects and also briefly mention the parts of the day. The answer of this question is the circle which divides the earth into lit and the dark half, it's known as a circle of illumination. Parts of the day are, first is dawn. The early period of the day is known as dawn. When the sun rises, that part of the day is known as the dawn. Midday, the sun is overhead and also called noon. Dusk, the sun is seen over the horizon and darkness sinks in. जब अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है, that is the evening time, that is known as the dusk. Next is night. It is completely dark. Midnight, the circle of illumination has moved exactly the opposite sides. Means अगर north side है तो अब south side की तरफ shift हो रहा है. That is the midnight. Next question is why are the days longer in the summer as compared to nights? Explain and mention the effects as well. As the earth circles the sun during the year, कि जैसा कि हम पता है कि अर्थ सन के आसपास सर्कल लगाती है, घूमती रहती है, जिस कारण से हाफ ऑफ द अर्थ गेट मोर एंड लेस सनलाइट दैन द अदर हाफ ऑफ द अर्थ, जिस कारण से समर में जो डेज होते हैं लॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू द नाइट्स. इन द समर मंथ्स नॉर्थन हाफ ऑफ द अर्थ वेयर वी लिव टिल्ट्स टुवर्ड्स द सन. समर मंथ्स में क्या होता है, नॉर्थन पार्ट जहाँ पर हम रहते हैं वो टिल्टेड हो जाता है सन की तरफ, उसका झुकाव होता है सन की तरफ. दैट्स वाई डेज आर लॉन्गर. दिस मीन्स वी गेट द मोर सनलाइट एंड मेकिंग द डे लॉन्गर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज नॉर्थन हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस विंटर इन दिसंबर? एक्सप्लेन एंड गिव रीज़न. जहाँ पर हमने एक्सप्लेन करना है कि दिसंबर में नॉर्थन पार्ट में विंटर सीजन कैसे आ जाता है. In the northern hemisphere experiences winter in the December because in December the southern hemisphere is tilted towards the sun. तो इस समय क्या होता है, दिसंबर में जो नॉर्थन पार्ट होता है वो सन से थोड़ा सा दूर हो जाता है और जो साउथर्न पार्ट होता है वो सन की तरफ झुका हुआ होता है, जिस कारण से नॉर्थन पार्ट में सन रेज नहीं आती है एंड वी एक्सपीरियंस विंटर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर. As the northern hemisphere does not receive any sun rays and heat, as there is a change in the season caused by the revolution of the earth, the northern hemisphere has winter. Next question is, if the earth was perpendicular to its orbital plane, what impact would it have on the duration of the day and night? इट मीन्स जहाँ पर हमने बताना है कि अर्थ अगर परपेंडिकुलर हो जाएगी ऑर्बिटल प्लेन में, थोड़ी सी जो टिल्टेड है वो नहीं होगी, तो डे और नाइट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इफ़ द रोटेशनल एक्सिस ऑफ द अर्थ वर परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिटल प्लेन, अगर वो परपेंडिकुलर हो जाता है सेवरल ड्रामेटिक डिफरेंसेस वुड अपीयर. द मेन इज द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट वुड बी एग्जैक्टली इक्वल ओवर द होल प्लेनेट. तो पूरे प्लेनेट पे और डे और नाइट की लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, वे दोनों बराबर हो जाएंगे ऑफ द इक्वल लेंथ. नेक्स्ट इज आवर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन द समर सोलेस्टाइस एंड द विंटर सोलेस्टाइस. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज समर सोलेस्टाइस 21st June, winter solstice 22nd December. First is, if marks the beginning of the summer season in the northern hemisphere, summer solstice से 21st June से northern part में summer season start हो जाता है. It marks the beginning of the winter season in the northern hemisphere और
विंटर सीजन 22 दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में। सेकेंडली, नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन। जब समर सोलेस्टाइस होता है तो नॉर्थ पोल सन की तरफ झुका हुआ होता है, और इन द विंटर सोलेस्टाइस साउथ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन। नेक्स्ट, on this day we have longest day and the shortest night in the northern hemisphere। जब समर सोलेस्टाइस होता है तो डेज की लेंथ बढ़ जाती है, नाइट्स आर शॉर्टर। ऑन दिस डे मीन विंटर सोलेस्टाइस में वी हैव द शॉर्टेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट नाइट इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। तो जहाँ पर दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती है इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर ड्यूरिंग द विंटर सोलेस्टाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू पोल एक्सपीरियंस अबाउट 6 months डे एंड 6 month नाइट। क्यों ऐसा होता है वहाँ पर कि पोल्स पर 6 month का दिन होता है और 6 month की नाइट होती है। द रीज़न फॉर दैट इज द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 month ऑफ डे एंड 6 month ऑफ नाइट ड्यू टू द टिल्ट ऑफ द अर्थ। क्योंकि अर्थ का झुकाव है अपने एक्सिस के ऊपर, वो सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं है, थोड़ी सी झुकी हुई है, जिस कारण से 6 month का डे और 6 month का नाइट होता है पोल्स के ऊपर। बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट ईच पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम द सन फॉर अबाउट 6 month। 6 month के लिए वो उसका झुकाव सन की तरफ हो जाता है, 6 month वो पोल सन से दूर हो जाता है। एंड व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन इट एक्सपीरियंसेस कॉन्टिन्यूस डे लाइट फॉर 6 month। जब नॉर्थ पोल सन की तरफ झुका हुआ होता है तो वहाँ पर डे लाइट होती है, 6 months के लिए वहाँ पर दिन हो जाता है और साउथ पोल पर रात हो जाती है। दैट इज़ द रीज़न। दैट्स ऑल अबाउट द short answer type question answer and the long answer type question answer of this chapter. I hope all of you understand about this. Thank you for watching this video.